I'll start with the core issue, and that is the gender inequalities which exist as a part of our life. So, when we look forward to saying that we need to have gender sensitive disaster risk reduction, actually, what we need to look forward to is whether at policy level or implementation of policy level or otherwise, we need to be careful about gender needs and gender concerns. Now, when we look at the entire facade, the fact remains that gender issues are existent in every society. Why blame only Indian society? I mean, it is there throughout the world in various levels. I mean, it could be different at different levels, but to say that it doesn't exist in other places is wrong. So it is existent everywhere and it has its own implications when it comes to disasters. It ma- it is more important when it comes to disasters. Why? Because contrary to the general belief which we have, disasters actually divide people. So the inequalities which are existent in the society, which might not be very obvious when we in general have social discourses, which are somewhere hidden in the social platform, they come out in a very bad manner when it comes to disasters. Excuse me, Disasters ma'am. divide. जी Ma'am, we will go with Hindi and English combination. हाँ जी श्योर. जी. सो मतलब हम जो सोचते हैं कि डिजास्टर्स जोड़ लेते होंगे लोगों को, मतलब आपदा जोड़ती होगी, ऐसा नहीं है, आपदा तोड़ती है. सो जो सारे इनइक्वालिटीज एग्जिस्टेंट है, जो ऑब्वियस नहीं रहते हैं अदरवाइज, वो बहुत बुरी तरीके से बाहर निकलते हैं और आपदा बहुत डिवाइड कर देती है लोगों को. सो जैसे सभी चीजें होती है, मतलब इट हैपेंस व्हेन इट कम्स टू वुमेन आल्सो. और ये ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक इसलिए है, फॉर द सिंपल रीज़न दैट द वर्क व्हिच वुमेन डू डज़न्ट गेट रिकॉग्नाइज्ड. मतलब फैक्ट ये है कि आप ये देखिए कि कभी भी कोई डिज़ास्टर होता है, लेडी सबसे पहले आगे बढ़ के ये देखती है कि मुझे मेरे बच्चों को खाना खिलाना है. कुछ भी हो जाए, वेदर इट इज़ अर्थक्वेक, वेदर इट इज़ सुनामी, व्हाटएवर, द फर्स्ट थिंग व्हिच कम्स इन द माइंड ऑफ अ वुमन इज़ मुझे मेरे बच्चों को खाना खिलाना है. मुझे मेरे फैमिली के लिए एक शेल्टर चाहिए, पहनने के लिए बेसिक कपड़ा चाहिए. सो ये सब मल्टीटास्किंग जो एक लेडी के जिंदगी के बहुत इम्पोर्टेंट आयाम रहते हैं, ये डिजास्टर्स में भी वैसे ही काम करती है, लेकिन उनके इन कामों को कोई रिकग्निशन नहीं है. सो जो रिकग्निशन कभी भी नहीं है, वो डिजास्टर्स के समय और बुरी तरीके से बाहर आता है. इट डिवाइड्स. नाउ what matters here is that we need to stop looking at women as a liability when it comes to disasters to begin with, and rather consider them as strength provider. And we should not consider them as weaklings. I mean, of course, violence is an issue which makes her a weakling, but otherwise she can be very strong. And the kind of help which she can give or support she can give to the family is unique in itself. And probably वो इसलिए होता है because cultural requirements जो रहते हैं, they stop men from behaving in a particular manner. So you don't expect men to start crying or crying their heart out. But it's different when it comes to women. जरा सा कुछ हुआ कि मतलब रोए थोड़ी देर और उसके बाद फिर से अपने पुराने मूड में आ गए. खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, उसमें आ गए. सो बायोलॉजिकली लेडीज ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, साइकोलॉजिकली दे आर स्ट्रॉन्गर इन नेचर. सो डिजास्टर्स में ये हेल्प करता है, जो उनका साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ रहता है. So we should consider women as strength providers when it comes to disasters and not a liability or a weak link. So the moment we start looking at this,
we would start moving towards gender sensitive disaster risk reduction. Their role, the way they can end up playing role. Now, when we talk about this, there are two things which we need to be careful about. एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं सेक्स, एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं जेंडर. दोनों में बहुत फर्क है. सो लॉ में जनरली हम सेक्स वर्ड यूज करते हैं, जेंडर नहीं करते हैं. सो जब हम सेक्स वर्ड यूज करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन. सो इट इज कॉल्ड अ फिजिकल कंस्ट्रक्ट. आदमी और औरत को जो गॉड गिफ्टेड फर्क है, दैट इज कॉल्ड सेक्स. जेंडर जो है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज ने जो बनाया हुआ है. जैसे खाना बनाना है, बच्चों की केयर करना है, वो एक लेडी करती है. अब इसमें चाइल्ड बियरिंग जो है, दैट इज दैट फॉल्स अंडर सेक्स, क्योंकि बच्चा तो लेडी ही पैदा करेगी. लेकिन बच्चे की केयर करना वो बोलता है कि माँ ने करना चाहिए. सो वो जेंडर में आता है. सो अगर आप ध्यान से इस बारे में सोचिए, सो सेक्स एंड जेंडर दोनों को साथ में लेकर अगर चलिए, तो आप ये समझेंगे कि बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे अपने बनाए हुए नियम है, ईश्वर के दिए हुए नियम नहीं है. सो ये एक फर्क जैसे ही हम सोचते हैं, तो हमें समझ में आता है कि बहुत सारी चीजों में हम काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों में न्यूट्रलिटी रखी जा सकती है. जैसे थोड़ा बहुत बच्चों का ध्यान रखना, थोड़ा बहुत घर की केयर करना, एक आध बार कपड़े धो देना, ये सब आदमी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं. बट समाज ऐसा बताता है कि वो औरत ने करना चाहिए. सो डिजास्टर्स के समय भी आप इन चीजों को और ज्यादा लेडी के ऊपर इम्पोज कर देते हैं, जो सोशल कंस्ट्रक्ट की चीजें हैं, कि उसने घर को संभालना है, उसने देखना है, कपड़े उसने देखना है, खाना उसने देखना है, जबकि दोनों देख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब इसमें एक चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, एंड दैट इज कि सोशल पैटर्न जो है एक लेडी को किस तरीके से रोक सकते हैं डिजास्टर्स के समय या डिजास्टर्स के बाद हेल्प लेने से. सो जब डिजास्टर्स चल रहे रहते हैं, सो एट द टाइम ऑफ डिजास्टर्स, it is the cultural patterns relating to female mobility or say female shame which can affect the things. So जो rescue providers रहते हैं, disaster relief providers रहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. So say for example कुछ cultures में what you look forward to is that a female should not go out of her house without a male relative. So in such a scenario, it is very difficult for the rescue provider to reach out to every woman and provide rescue or provide relief supplies, medicines. There are so many things. बात सिर्फ खाना देने की नहीं है, बात सिर्फ मेडिसिन्स की नहीं है, बात और भी चीजों की रहती है जो कि कम्युनिटी सेंटर्स में आप दे सकते हैं. लेकिन कल्चरल पैटर्न्स जो है वो एक लेडी को रोकते हैं. सो जो लेडी घर के मेल मेंबर्स के साथ में भी बात करने की फ्रीडम नहीं रखती है, उसको अगर आप कहिए कि कम्युनिटी सेंटर में जाए और वहाँ जो कॉमन फैसिलिटीज हैं उनको अवेल करे, it gets very tough. So it is the cultural pattern which stop you. And during disasters, there are other things also. Say for example, damage to clothing. So the cultural pattern relating to shame would stop a woman in such a situation. Then there are other issues also. जैसे जो लाइफ स्किल्स रहते हैं, स्विमिंग रहता है, ट्री क्लाइंबिंग रहता है, ये जनरली लड़कों को ही सिखाया जाता है बहुत से कल्चर्स में. सो ऐसे में अगर एक सुनामी आ जाता है या फ्लडिंग हो जाता है, तो लेडीज तो हमेशा डिपेंडेंट ही रहती है.
So it also stops. Then a lot of families have eat the spare approach for women. So जो सबके खाने के बाद में बचता है वो लेडी को मिलेगा. तो ऐसे में डिजास्टर्स के समय स्पेसिफिकली जो न्यूट्रिशनल नीड्स रहते हैं वो दे आर नॉट टेकन केयर ऑफ. देन देयर कुड बी डबल वल्नरेबिलिटीज. जैसे एक लेडी है वो से फॉर एग्जांपल डिफरेंटली एबल्ड है, वो ब्लाइंड है, प्लस डिजास्टर्स के समय बिकॉज शी इज पुअर, शी इज लिविंग इन अनसेफ एरिया. सो उसे डर लगेगा बाहर निकलने के लिए कि पता नहीं अभी क्या होगा बाहर निकलने पे. सो दीज डबल डिसेबिलिटीज would affect the relief work a lot. Then हम ये भी देख पाते हैं कई बार कि जहाँ पे रिलीफ सप्लाईज मिल रहे रहते हैं, रिलीफ प्रोवाइडर्स जो रहते हैं दे आस्क फॉर सेक्सुअल फेवर्स टू वुमेन. इस चीज को लेकर के तो आपका यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज भी काफी बदनाम है. सो अगर आप सीरिया और बाकी जगहों पे जाके देखिए तो वहां पे कुछ कुछ जगहों पे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी हो चुका है. सो अगर एक लेडी जाती है रिलीफ सप्लाईज प्रोवाइडर्स के पास में तो ये मान के चला जाता है कि वो उसने जरूर कुछ सेक्सुअल फेवर्स दिए होंगे और अपने समाज में लोग उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते हैं. सो इतना भी प्रॉब्लम हो सकता है डिजास्टर्स के समय. सो दिस इज ऑल व्हाट वुमेन कैन एंड अप फेसिंग ड्यूरिंग डिजास्टर्स. देन पोस्ट डिजास्टर्स आल्सो अगर आप देखिए सो इनकम अफेक्ट हो जाती है किसी भी फैमिली की. सो इफ अ मैन लूजेस जॉब that is accepted that he has lost job so he is not feeling good and all that. लेकिन लेडी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनी रहती है. वो खाना बनाना, कपड़े धोना, उससे उसको कोई रिलीफ नहीं है. देन जो थोड़ा बहुत कुछ लेडीज ने बचाया रहता है घर के खर्चे में से या अदरवाइज जो उसने रिसोर्सेज क्रिएट किए रहते हैं कि कभी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हैंडल कर सकूं, वो यूज तो किए जाते हैं बट देन उसके लिए उसका एप्रिसिएशन नहीं मिलता है. सो दैट इज ऑल्सो वन फैक्ट. सो दैट इज हाउ यू डोंट give importance to the work which has been done by her. Then when it comes to disaster relief also, strangely बहुत सारे disasters में जो कि इंडिया में हुए हैं उनमें भी ये देखा गया है कि जो लेडीज वॉलेंटियर करके गई थी सिचुएशंस में उनको भी प्रॉब्लम फेस करने पड़े. So they also ended up facing discrimination. They also ended up facing indecent behavior, in fact. So हम ये भी नहीं जज कर पाते हैं कि ये जो लेडी आई है ये हमको खाना देने के लिए, मेडिसिन देने के लिए आई है, हम उसके साथ भी बदतमीजी करते हैं. सो बोथ वेज आई मीन अगर आप ये देखिए कि एक लेडी जो डिजास्टर फेस कर रही है वो भी प्रॉब्लम में है और जो डिजास्टर रिलीफ में आपको हेल्प करने के लिए वॉलंटियर बन के जा रही है वो भी बड़ी ऑड सिचुएशन में है, वो भी इंडिसेंट बिहेवियर फेस कर रही है. सो दोनों तरफ से ही इश्यूज तो है, इश्यूज आर एग्जिस्टेंट. Then there are certain specific concerns. There could be some disasters of specific concerns. जैसे मरीन डिजास्टर्स है. मरीन डिजास्टर्स में द नॉर्म इज वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट. जब एक शिप डूबने लगता है तो सबसे पहले लेडीज को और बच्चों को वहां से हटाया जाता है. वो नॉर्म रहने के बाद भी कम लेडीज बच पाती है. सो प्रोबेबली जो नॉर्म है वो उसके इम्प्लीमेंटेशन में देर आर इश्यूज. देन देर कुड बी सर्टेन डिजास्टर्स, से फॉर एग्जांपल सुनामी. Now, how exactly do you face problem in these disasters? See, you need to understand. Shirts are worn, whereas saris are draped, right? साड़ी को हम बांधते हैं, शर्ट को पहनते हैं. So, इस टाइप के जो डिजास्टर्स होते हैं, साइक्लोन है, सुनामी है,
women end up losing their attire in that. जो तेज हवा चल रही रहती है या gush of water रहता है, उसमें साड़ी कभी कभी निकल जाता है या दुपट्टा निकल जाता है. सो ऐसे में ऐसे circumstances जब रहते हैं, so the concept of shame comes into picture. So in lot of areas, what was seen was that women would prefer to be drowned rather than get saved with less clothing. So रेस्क्यू ऑपरेशन वाले बचाने की कोशिश कर रहे रहते हैं, लेकिन वो लेडी बाहर नहीं आना चाहती है. क्यों? क्योंकि उसकी साड़ी तो बह चुकी है और सिर्फ ब्लाउज पेटीकोट पहन के शी डजंट वांट टू कम आउट बिकॉज दिस कैन बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर हर. आसपास के जो लोग हैं उनको फेस कैसे करेगी? सो इस टाइप के इश्यूज जो हैं स्पेसिफिक डिजास्टर्स के, मतलब दे डोंट वांट टू शेम देमसेल्व्स लाइक दैट. So this can be a huge problem when it comes to disaster issues. So this is how you understand the entire issue of discrimination, how it operates during disasters, or what kind of problem it can create. Say for example, even in earthquakes, बीच में कश्मीर में earthquake आया था, so वहां पे भी रेस्क्यू ऑपरेशंस में बहुत दिक्कत गई थी. Why? Because it's a highly patriarchal structure. So आप कैसे, आपको घर घर जाके लेडीज को ट्रेस करना पड़ा था. एंड स्पेसिफिकली जैसे सुनामी डिजास्टर है एंड या फ्लड्स है, सुनामी एंड साइक्लोन में ज्यादा होता है. वुमेन एंड अप हैविंग लॉट ऑफ गायनिक इश्यूज. लेकिन अगर आप उनसे एक्सपेक्ट कीजिए कि वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में जाएंगे और मेल डॉक्टर्स के सामने जाएंगे, वो मना कर देते हैं. सो तकलीफ होगी वो चलेगा, इतनी तकलीफ होगी कि और इन्फेक्शन की वजह से डेथ हो जाए वो चलेगा, लेकिन मेल डॉक्टर के सामने नहीं जाना है, इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट. सो दीज आर कल्चरली इम्पोज्ड इश्यूज. आई मीन आपको कोई ये नहीं कहता है कि आप मेल डॉक्टर, बट that happens and it is more about culture. In certain cultures they go before male doctors, but in certain cultures which are very patriarchal in nature, they prefer not to go in front of doctors who are male. And to go to a male doctor with gynec issues is something which is just not done. So what I wanted to say was that it's the social construct which can be obstructive when it comes to disaster relief processes or otherwise disaster risk reduction. So that is the reason why I told you the difference key, what is sex and what is gender. So आपके social construct से जुड़ी चीजें जो रहती हैं, social cultural, ये बहुत problem create कर सकते हैं, in addition to the issue of violence and other things. Now, there are certain researches which talk about how women can be an aid in the processes. Just a second. मैम आवाज नहीं आ रही? हाँ रुकिए सर, 1 मिनट. हाँ एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, अभी मैडम तो सेशन ले रहे हैं बट शी इज नॉट वेल. आ गए मैडम, आ गए. चलिए वो मैडम, एक्चुअली आर यू बीच ओके? बीच में, हाँ मैम, आई एम फाइन. एक्चुअली वो बीच बीच में डॉक्टर्स चेक करने आ रहे हैं ना. हाँ हाँ, मैंने इसीलिए मैंने पार्टिसिपेंट्स को वेट करने के लिए कहा. ठीक है मैडम, देखिए करिए कंटिन्यू. So I think I'll be able to continue, no issues. ओके ओके मैम, नो प्रॉब्लम. So
Now, what matters is how we need to understand how women can contribute in the process. So, first part is to understand the issues relating to social construct. Second part is to understand the researches and how exactly we can contribute in the process. Now, there are certain researches, say, for example, Ozden Lisk of Turkey, OZDENISIK. He is the person who has done a lot of research when it comes to disaster situations which have been happening in Turkey and how women, in fact, contribute to the work when it comes to disasters. So कैसे लेडीज ज़्यादा resilient रहती है और प्रोसेसेस में इनफैक्ट हेल्प करते हैं. सो ये एक सेट ऑफ रिसर्चेस है. Now, when we say disaster risk reduction, what we talk about is how these different roles and relationship can affect the gender stereotyping when it comes to various cultural milestones. अब इसमें अगर हम देखते हैं ना, there are different researches. We always start with the Turkish work. Why? Because it is very extensive. उन्होंने बहुत empirical work करके और कुछ conclusions निकाले थे. Now, वैसी straight researches इंडिया में नहीं है अभी, but उन्होंने जो अपनी research की थी उसमें उन्होंने कुछ pointers दिए थे, जैसे resilience of women and their ability to adopt to rehabilitation process in disaster research. Now, there's one thing which we need to understand. Disaster processes जो रहते हैं, ये 1-2 दिन की बात नहीं रहते हैं. So, it may vary from, say, 2-3 months to long term, say, 2 years processes in certain areas. So 6 महीने तो कहीं नहीं गए एक डिजास्टर प्रोसेस में. सो ये जो इतना बड़ा प्रोसेस रहता है जो कि बहुत मेंटली टायरिंग रहता है, उसमें अडॉप्ट करना अपने आप को इज नॉट एन इजी थिंग. सो वुमेन टेंड टू डू इट बेटर देन मेन. व्हाई? बिकॉज दे आर एबल टू क्राई देयर हार्ट आउट. जहाँ डिफिकल्टी रहती है थोड़ा बहुत रोते हैं, देन दे गेट बैक टू द वर्क. बट आपके जो कल्चरल माइल्यू है, इट स्टॉप्स मेन फ्रॉम बिहेविंग लाइक दैट ना. आदमी अगर रोए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, उसके अपने घर के लोग उसको बहुत कुछ बोल देते हैं, बाहर वाले तो बाद में बोलेंगे. बट लेडी अगर रो रही है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है उस चीज में. सो दैट इज द रीजन व्हाई प्रोबेबली शी इज एबल टू अडॉप्ट इन अ बेटर मैनर टू दिस लॉन्ग टर्म प्रोसेस. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड डिजास्टर रिकवरी में ना, देयर आर 3 थिंग्स. एक होता है शॉर्ट टर्म डिजास्टर रिकवरी, एक होता है मिड टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म. जैसे अगर कहीं अर्थक्वेक आया है तो इमीडिएटली आपको कहीं शिफ्ट करना किसी शेल्टर में हफ्ते 10 दिन के लिए, दैट इज शॉर्ट टर्म प्रोसेस. तो जनरली हम ये करते हैं कि किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में या ऐसी जगह पे लोगों को शिफ्ट कर देते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े रूम रहते हैं, वॉशरूम तो रहते ही रहते हैं स्कूल कॉलेजेस में, और कैंटीन वगैरह भी रहते हैं. तो खाना बनाना, लोगों की सैनिटेशन केयर, सब एवरीथिंग टेक्स प्लेस वेरी इजीली. सो दिस इज शॉर्ट टर्म, राइट? हफ्ते 10 दिन के लिए आपको शिफ्ट कर दिया, तब तक आपके शेल्टर्स बनने चालू हो जाते हैं. फिर टेम्परेरी शेल्टर्स में लोग रहते हैं से 4-5 महीना, देन तब तक आपके बाकी शेल्टर्स तैयार हो जाते हैं. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, छोटी बात नहीं है. सो लेडीज आर मोर रेजिलिएंट टू दिस प्रोसेस एंड द चेंजेस. सो सारा उठा के पहले किसी शॉर्ट टर्म जगह पे जाना, फिर किसी मिड टर्म जगह पे जाना, फिर लॉन्ग टर्म पे जाना, उसको उस आशा के साथ में देखना कि चीजें सुधर रही है, is what women are able to do better. Then their perception about risk
बहुत कैलकुलेट करके लेडीज चलती है कि मतलब यहाँ जाने के लिए इतना राशन मुझे चाहिए मेरे बच्चों के लिए, या मुझे मेरे घर के लोगों के लिए इतना कपड़ा चाहिए, या विंटर आने वाला है तो मुझे ये अरेंजमेंट करनी ही है. So their perception about risk is more calculative in nature because in any case they are multitaskers ना. वो पहले से ही प्लान कर करके चलते हैं अपने घर की चीजों को. Then their capacity to observe details and evaluate them. So women can work in a very methodical manner. बहुत छोटी चीजें, बहुत छोटे डिटेल्स जो रहते हैं ना, कि मुझे ये सामान चाहिए रहेगा, ये सिचुएशन से डील करने के लिए ये सामान चाहिए रहेगा. तो वो जो घर की मसालादानी की आदत रहती है ना, इट परकोलेट्स इन मैनी थिंग्स, कि मुझे ये चीजें चाहिए होंगी. So this detailing, which is a natural nature of women, can be very assisting when it comes to disaster processes. मतलब इंडिविजुअल लेवल पे अगर हर औरत इस तरीके से चीजों को संभाल रही है, तो जो रेस्क्यू प्रोवाइडर्स है या रिलीफ प्रोवाइडर्स है, उनका काम जस्ट हाफ हो जाता है. बिकॉज दे कैन स्ट्रेट अवे आस्क यू कि मुझे ये चाहिए है, ये मेडिसिन चाहिए है, इतने पानी की जरूरत है, इतना इतने दूध की जरूरत है. दे वुड वेरी क्लियरली आस्क. देन दे कैन विथस्टैंड लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा. रीजन वही है, कुछ जरा सा होता है ना, रोना चालू कर देना और दे क्राई देयर हार्ट आउट, उसके बाद में आराम से काम पे लगना. सो साइकोलॉजिकल रेजिलियंस उस वजह से ज्यादा रहता है लेडीज का. देन एक ग्रुप थेरेपी नाम की चीज रहती है जो डिजास्टर्स में बहुत काम करती है. पोस्ट डिजास्टर सिचुएशंस में वुमेन इन जनरल टेंड टू बी वेरी गुड ग्रुप प्रोवाइडर्स. मतलब ग्रुप थेरेपी में बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि उनका जनरल नेचर भी वैसा ही रहता है. So at least when it comes to women amongst themselves, they would provide group therapy to each other. They would sit back, they would cry their heart out, they would discuss. ठीक है, मुझे मेरे घर के लिए ये चाहिए, तुम्हारे घर के लिए तुमको ये चाहिए. So if I have something in excess, you need it, you take from me. And what I need and what you have, you give that to me. तो ये बाटर जो रहता है और साइकोलॉजिकली एक दूसरे को हेल्प करना जो रहता है, जो कि जनरली वो करते हैं, वो डिजास्टर प्रोसेसेस में बहुत हेल्प करता है उनको. तो दिस ग्रुप हीलिंग is something which women are able to do in a better manner. Then they're very resourceful when it comes to rescue operation. So किसी भी लेडी में ना एक कैपेसिटी होती है कि क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए. आप जब घर से बाहर निकल रहे हो तो उस चीज को लेकर के बाहर निकलना. नाउ व्हेन इट कम्स टू थिंग्स लाइक साइक्लोन, इट इज ऑब्जर्व कि आप साइक्लोन तो हम एसेस कर पाते हैं ना कि आने वाला है, तो हम 2-3 दिन पहले से ही बता देते हैं कि अब साइक्लोन आने वाला है. सो व्हाट इट हैज बीन सीन इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज वुमेन स्टार्ट प्रिपेयरिंग ड्राई राशन. मतलब शॉक में आने की जगह कि अभी साइक्लोन आने वाला है तो हे भगवान मैं क्या करूं. नो, व्हाट दे डू इज दे प्रिपेयर ड्राई राशन. नाउ दैट हेल्प्स यू. जब एक्चुअल साइक्लोन आता है और आपको रिलीफ सप्लाईज के रिलीफ के लिए रेस्क्यू करा के आपका घर खाली करा के ले जाते हैं, तो कुछ थोड़े बहुत कपड़े और खूब सारा ड्राई राशन, दैट इज व्हाट दे आर लेफ्ट विद देम. एंड दैट हेल्प्स द रिलीफ प्रोवाइडर्स अ लॉट. क्यों? क्योंकि अपने जगह पे ये देखा गया कि तकरीबन हर लेडी के पास में ड्राई राशन है. तकरीबन हर लेडी के पास में जरूरत के 2-4 कपड़े है ही है. सो बहुत चीजें आसान हो जाती है. प्लस कुछ जरूरी मेडिसिन वगैरह जो रहती है परिवार के लोगों की, उनको पता रहता है कि किसकी क्या क्या है. सो ड्राई रेशन, मेडिसिन, थोड़े बहुत कपड़े, दैट इज हाउ उनका सब तैयार होके चलता है. सो दे आर वेरी रिसोर्सफुल व्हेन इट कम्स टू जनरल रेस्क्यू एंड जनरल एड.
देन लेडीज को अगर आप डिजास्टर वॉलेंटियर्स बना लीजिए तो यही उनकी जो कैपेसिटी रहती है ना, ये वहाँ पे बहुत काम आती है। सो ये रिसर्चेस जो है ये टर्की की है, एज आई टोल्ड यू, और इंडिया में इस टाइप की रिसर्च अभी नहीं है। बट देन lot of people are planning to do such researches to understand how women can be an aid in disaster processes. So जो जनरल परसेप्शन है कि एक लेडी लायबिलिटी रहती है डिजास्टर्स के समय, उस परसेप्शन को भूल के हमें जल्दी ही वहां पहुंचना पड़ेगा जहां हम सोचें कि वो एक लायबिलिटी नहीं है, इनफैक्ट वो एक एसेट है। अगर एक लेडी ठीक से चीजों को हैंडल कर पा रही है तो उससे ज्यादा बड़ा एसेट कोई नहीं होता डिजास्टर प्रोसेसेस में। दिस इज व्हाट वी नीड टू लुक फॉरवर्ड टू। इंडिया में एक रिसर्च जो है और जिसको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, दैट इज ऑफ स्नेह गंगवार। सो स्नेह गंगवार ने कुछ पॉइंटर्स दिए हैं बताने के लिए कि डिजास्टर प्रोसेसेस में हाउ वुमेन कैन बी इम्पोर्टेंट and what kind of role they can have. So, say for example, gender mainstreaming. So, gender mainstreaming says कि आप फिर से एग्जामिन कीजिए कि आपने इंस्टीट्यूशनल लेवल पे लेडीज के रोल को जैसे समझा है और सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लेवल पे जो समझा है वो सही है क्या। देन राइट बेस्ड अप्रोच जो ये बोलती है कि किसी भी प्रोसेस में एक आदमी की और औरत की दोनों की ह्यूमन राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये एक अप्रोच हो सकती है आपकी जेंडर पर्सपेक्टिव्स की। देन पार्टिसिपेटरी अप्रोच जो ये कहती है कि आपके पॉलिसी लेवल पे जब आप पॉलिसी बना रहे रहते हैं या पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रहे रहते हैं तो लेडीज ने पार्टिसिपेट करना चाहिए। जितना ज्यादा वो पार्टिसिपेट करेंगी उतना ज्यादा आपकी पॉलिसीज विल बी न्यूट्रल इन नेचर and gender sensitive in nature. Then the disaster risk reduction approach. So disaster risk reduction approach says that there are multiple stakeholders. बहुत सारे लोग हैं एक डिजास्टर में, अगर आप सिचुएशन में अगर आप देखते हैं, और women play a very important role being around 50% of part of the disaster processes. So आपका जो humanitarian aid process है या disaster recovery process है, women can play very important role, specifically if it is a long term process. अगर आपके डिजास्टर का अगर नेचर ही वैसा है कि आपका जो प्रोसेस है वो अराउंड 2 साल लेने वाला है, so women can play a very important role in this. Then there is a affirmative action approach which says कि जो जितनी भी disparities हम सोच के चल रहे हैं उसको एक तरफ करके और आपको बैलेंस मेंटेन करना है. That is how we look at the things. Now, these are the researches. So this is the second part which we study when it comes to gender sensitiveness and disaster risk reduction. Then you have law and policy, which is existent in India. Now, as we look at the things in any subject, you always start with constitutional law. Constitutional law में we start with Article 14, which is the umbrella law when it comes to equality. So, as you are aware, Article 14 says that the state shall not deny any person equality before law or equal protection of laws within the territory of India. So, अगर आप ध्यान से देखिए तो एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, एक नेगेटिव है. इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो नेगेटिव कंसेप्ट है जो बोलता है कि कोई स्पेशल प्रिविलेज किसी को नहीं मिलेगी. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो बोलता है कि मतलब एवरीबडी विल गेट assistance of law. Whatever is your situation, you will get assistance of law. So, same चीज आपकी disaster risk reduction में भी है. So,
whether you are a man or a woman, you would get treated equally. आपको privileges एक जैसी मिलेगी, किसी को कुछ स्पेशल देने की जरूरत नहीं है, unless there is special need. Then you have Article 15(1) and 15(3) जो 14 के साथ में आप पढ़ेंगे, जो बोलता है कि मतलब you cannot go ahead with any discrimination on the ground of religion, race, caste, sex or place of birth. So अगर आप ध्यान से देखें, the word used here is sex. So you are talking about the biological differences, not the social construct. Then you have, if you read all of these together, what you understand is Article 14 and Article 15(1), they say that you have to treat equals equally. So साधारण शब्दों में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर मेरे पास में 2 रोटियां हैं और एक आदमी खड़ा है, एक औरत खड़ी है, तो मुझे दोनों को एक-एक रोटी देनी होगी. So treat equals equally. 15(3) को अगर आप देखते हैं तो वो स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है. सो से फॉर एग्जांपल मेरे पास में 2 रोटियां हैं, लेकिन जो लेडी है वो प्रेग्नेंट है या वो लैक्टेटिंग है, उसकी नीड्स ज़्यादा है, तो एक रोटी तो उसको देना ही पड़ेगा, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन हो सकता है कि जो आदमी की एक रोटी उसमें से भी थोड़ा सा ज़्यादा उसको देना पड़े, बिकॉज यहाँ मामला 2 का नहीं रह गया, 3 का हो गया है ना. So that is how you understand the zonation. So treat equals equally and don't treat unequals equally. That is how you understand the disaster law then. अब इसमें पूरे प्रोसेस में आपको एक चीज जो समझनी पड़ती है, एरिस्टोटल ने एक बार बहुत पहले कहा था कि you should always treat equals equally. Treating unequals equally results into more inequality. सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये 2 नियम हैं आपके, जो आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हुए इंटरप्रेट कर पाते हैं. एंड अगर आप अभी रिसेंट डिस्कोर्सेस देखें, बिकॉज एरिस्टोटल मतलब एकदम पुराने जमाने की बात हो गई, तो रिसेंट डिस्कोर्सेस अगर देखते हैं, रॉल्स, सो रॉल्स को भी अगर आप देखते हैं, जिसने एक किताब लिखा है थियोरी ऑफ जस्टिस, जिसको आज के ज़माने में लॉ स्कूल्स में तो ज़रूरी पढ़ाया जाता है, उसकी आप किताब अगर देखते हैं तो वो बोलता है कि किसी भी समाज को समझना अगर आपको है, सो आपको ये देखना होगा कि हाउ इट टेक्स केयर ऑफ दोज हु आर वर्स ऑफ. सो सिमिलरली आपको किसी भी पॉलिसी को देखना है या किसी सोसाइटी में जस्टिस है कि नहीं है ये समझना है, तो जो वर्स ऑफ कंडीशन में है उसका क्या हाल है वो देखिए, तो आप समझ जाएंगे कि वो किस तरीके से काम कर रहा है. सो जो वर्स ऑफ सिचुएशन में है उसके क्या हाल है, वही आपका जो लॉ है वो ठीक है कि नहीं है ये डिटरमाइन करेंगे. अब इसमें आप एक एग्जांपल ले सकते हैं. मान लीजिए एक लेडी है जिसको मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज है. नंबर 1, वो एक डिफरेंटली एबल्ड लेडी है. नंबर 2, वो ओल्ड है. नंबर 3, वो दलित है. ठीक है, मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज. एक तो लेडी है, ऊपर से ओल्ड, ऊपर से डिफरेंटली एबल्ड, ऊपर से वो दलित भी है. तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये एक्ट करेंगे, है ना. जो ओल्ड है तो नेचुरली उसकी तबीयत खराब हो सकती है, तो उसके लिए जाके रिलीफ सप्लाईज लेके आना इज टफ टास्क. सो शी इज डिपेंडेंट ऑन उसके घर में आके कौन क्या दे सकता है.
वो डिफरेंटली एबल्ड है, सो नेचुरली डिजास्टर सिचुएशन में और डरेगी। मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो सब तरफ सब कुछ टूटा फूटा है, कहीं मुझे और चोट वोट न लग जाए। वो अगर दलित है तो जैसा कि मैंने आपको एकदम शुरू में अपने लेक्चर में बताया, डिजास्टर्स डिवाइड। सो वो डरेगी कि मतलब मैं गलती से एक ऐसी जगह पे मैं ना पहुंच जाऊं जहां जो दूसरी कम्युनिटी है वहां के लोग बैठे हुए हो या रिसोर्सेस उनके हाथ में हो, नहीं तो और ज्यादा दिक्कत हो सकती है। सो इसमें हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये सारे कंपोनेंट्स अपने अपने तरीके से ऐड करते हैं। इसीलिए जब हम डिजास्टर सप्लाईज की बात करते हैं तो एक बहुत क्लियर नियम है कि कोई भी रिलीजियस प्लेस पे डिजास्टर सप्लाईज नहीं दी जाती है। फिर कोई भी जगह जहाँ पे कुआं बना हो और वो वहाँ पे स्पेसिफिकली रूरल एरियाज में वहाँ डिजास्टर सप्लाईज नहीं दी जाती है, क्योंकि जहाँ भी कुआं है वहाँ पे जरूर कास्ट इक्वेशंस रहेंगी रूरल एरिया में। तो कुएं के पास में कभी नहीं देते, मंदिर मस्जिद के पास में कभी नहीं देते, नहीं तो ये सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू वुमेन हु हैव मल्टीपल डिसेबिलिटीज। सो दिस इज वन इशू। देन अगर आप बाकी सिचुएशंस देखें तो हमारे पास में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है जिसके एग्जिस्टेंस को हम कोविड के बाद और ज्यादा समझ गए हैं। सो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो काफी सारी चीजें बताता है। उसमें थैंकफुली एक सेक्शन है जिसको बोलते हैं सेक्शन 12, जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिलीफ की बात करता है। सो इतना तो करना ही पड़ेगा सरकार को, क्योंकि वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करता है, एक्ट खुद ही बात करता है उस बारे में। सो इसमें खाने का, पानी का, मेडिकल फैसिलिटीज का, सैनिटेशन का, देन स्पेशल प्रोविजंस फॉर विडोज ऑर्फन्स, देन एक्स ग्रेशिया असिस्टेंस फॉर लॉस ऑफ लाइफ एंड ऑल दैट, ये पूरे प्रोविजंस हैं जो हमारे काफी काम के हैं अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात करें। देन there is one provision there which is of much use to us, and that is section 61, जो clearly बोलता है कि while providing compensation and relief to victims of disasters, there should be no discrimination on the ground of sex, caste, community, descent and religion. So equality provision तो clearly है उसमें। Then you have something called national policy for disaster management. So आपकी पॉलिसी जो है वो भी वल्नरेबल ग्रुप्स की बात करती है कि हमको खास ख्याल रखना है वल्नरेबल ग्रुप्स का, विद द ओनली डिफरेंस कि जो पॉलिसी है वो सिर्फ लेडीज की बात नहीं करती है, वो वल्नरेबल ग्रुप्स में आपके एल्डरली पर्सन्स की भी बात करती है, वो बच्चों की भी बात करती है, स्पेसिफिकली जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं डिजास्टर्स में उनकी बात करती है। सो ऐसे मतलब काफी बड़ा उसका ब्रॉड परव्यू है। देन कुछ स्टेट्स ने तो बहुत पहले ही पॉलिसीज बना ली थी, जैसे JNK स्टेट ने, जम्मू एंड कश्मीर ने बहुत पहले से पॉलिसी बना ली थी। तो their policy talks about community based disaster management. So thankfully उनका अगर आप पॉलिसी देखते हैं तो वो औरतों की बात करती है, बच्चों की बात करती है, वो बड़ों की बात करती है और वो डिफरेंटली एबल्ड लोगों की बात करती है। सो ये सारे उनकी पॉलिसी के हिसाब से वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जिनको एड ठीक से मिलना ही चाहिए पॉलिसी के हिसाब से। Then it talks about other things, essential services. It talks about immediate relief to be given to people. It talks about the state disaster management authority which they have and which functions in a very good manner. जब बात लेडीज की आती है
So it talks about widows or single women. It talks about older women. It talks about differently abled women. And it also talks about female-headed households. मतलब जहाँ पे कोई बड़ा मेल नहीं है, माँ है और बच्चे हैं, उसकी भी बात करती है ये पॉलिसी। और इन सब कैटेगरीज के रिलीफ के बारे में लिखा हुआ है उस पॉलिसी में बहुत क्लियरली। Now this is something which is unique considering the fact that the relief providers have always faced a lot of problems when it comes to places like this, because uh, they have a highly patriarchal structure. So वहाँ पे ये लेडीज आराम से बाहर निकलती नहीं है डिजास्टर रिलीफ लेने के लिए, या अगर आप ये सोचिए कि डॉक्टर की असिस्टेंस आप इनको दिलाएंगे वगैरह, आसान नहीं है। सो एक बहुत डिटेल्ड पॉलिसी ऐसे में जहाँ इन सब के बारे में लिखा हुआ है, वो आप काफी मदद कर सकती है क्योंकि सबके बारे में लिखा हुआ है। सो इट्स इजी टू एक्ट इन सच सिचुएशंस। देन महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र की पॉलिसी भी बहुत अच्छी है बिकॉज इट aims at reducing women deaths when it comes to disasters. So बहुत सी वजहों से जो लेडीज की डेथ हो जाती है, कई बार न्यूट्रिशनल नीड्स की प्रॉब्लम रहती है, कई बार जो चोटें लगी होती है और डॉक्टर की असिस्टेंस नहीं मिली होती है। So all this has to be taken care of when it comes under the Maharashtra policy. Even महाराष्ट्र की पॉलिसी जो है टॉक्स अबाउट मैटरनल एंड न्यूबॉर्न मोबिलिटी। मतलब डिजास्टर्स के बीच में जो बच्चे पैदा होते हैं उस समय माँ की जैसी स्थिति रहती है, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि ये ध्यान देने वाली बातें हैं। देन सेक्सुअल वायलेंस जो होता है डिजास्टर्स के समय, ये सारी चीज़ें महाराष्ट्र की पॉलिसी में बहुत क्लियर लिखी हुई है। Now, ओवरऑल अगर आप देखिए तो ओडिशा के बाद में महाराष्ट्र ही एक ऐसा स्टेट है जिसका जो प्लान है, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, it is very sensitive towards women. So those who are living in Maharashtra should in fact be very proud of the system which they have. As I told you that after Odisha, it is Maharashtra which came up with a very sensitive policy when it comes to disaster management. इसमें there's a special chapter on relief measures for women जो कि प्रोटोकॉल में आता है, जिसमें रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ केयर नीड्स जो है लेडीज की, वो स्पेशल फोकस एरिया रहने वाला है। सो दैट मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन डिसेबल्ड पॉपुलेशन पे भी एक चैप्टर है उसमें। देन साइकोलॉजिकल असिस्टेंस पे, जो कि लेडीज जिन्होंने वायलेंस फेस किया है उनकी साइकोलॉजिकल असिस्टेंस पे चैप्टर है। सो काफ़ी तरह की चीज़ें जो कि एक लेडी फेस कर सकती है डिजास्टर्स के समय, उनके बारे में मेंशन है। सो बेसिकली इट्स अ वेरी गुड पॉलिसी। देन यू हैव द अरुणाचल पॉलिसी, वो भी एक मतलब अपने आप में काफ़ी अच्छी पॉलिसी है। एज आई टोल्ड यू, ओडिशा पॉलिसी जो कि सारे पॉलिसीज में टू बिगिन विद पहली पॉलिसी जो कि जेंडर सेंसिटिव थी। देन आसाम पॉलिसी इज देयर। सो दैट इज हाउ यू हैव different policies. Now when you look at the entire thing towards the end, what you would understand is the overall approach of law is gender sensitive. मतलब अगर आप ये कहिए कि कोई लॉ के लेवल पे प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। मतलब कुछ लोगों ने काफी ज्यादा सेंसिटिव बनाया है, जैसे महाराष्ट्र ने बनाया, ओडिशा ने बनाया,
कुछ ने थोड़ा कम बनाया है, वो प्रोसेस में है, बट हमें ये समझना होगा कि लॉ जो है ना, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी, सो इट इज कंडीशन बाय सोशल रियलिटीज. सो नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसी चीज है जो किसी भी चीज को लेकर के वो आपका लॉ ही है. सो नॉन डिस्क्रिमिनेशन इज अ नॉर्म ऑफ लॉ, so it percolates everywhere. When it comes to gender, also it percolates. So the at normative level, there is no issue. At least I don't see any issue. The only issue which we have is the societal needs or societal perspective. जो मैंने आपको शुरू में ही कहा कि एक होता है बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, एक होता है सोशल कंस्ट्रक्ट. सो जब बात बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट पे आती है, वहाँ लॉ इंटरफेयर कर सकता है. लेकिन जब बात सोशल कंस्ट्रक्ट पे आती है ना, तो वहाँ लॉ एक लिमिट से ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर पाता है. एंड देयर कम्स द प्रॉब्लम. से फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी है जो बोलती है कि आपको मेल रिलेटिव के बगैर बाहर नहीं निकलना है. एक सोसाइटी ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल रही है, तो वहाँ लॉ कुछ ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता है डिजास्टर्स के केस में, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट सोशल एंड कल्चरल कंस्ट्रक्ट. हम जहाँ हेल्प कर सकते हैं, जिस लेवल तक कर सकते हैं, से फॉर एग्जांपल हमारे पास में 2 रोटियां हैं तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वहाँ लॉ कैन इंटरफेयर. लेकिन लॉ यहाँ इंटरफेयर नहीं कर सकता. लॉ ये नहीं एक लेडी को बोल सकता है कि आपका समाज इस चीज को माने या ना माने, आपको रिलीफ सप्लाईज लेने के लिए आना ही पड़ेगा. वो नहीं कर सकते हम. इट एड्स टू आवर वर्क इन द सेंस कि जहाँ पे भी ऐसा पेट्रियार्कल इश्यूज है, वहाँ फिर हमको घर घर जाके डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है. So that's the only way then we can manage. So it's all about the social construct, and this discrimination is there in our own psyche. So there it only increases the work of law and the implementing agencies. But जैसे जैसे हम अपने साइकी पे वर्क करते हैं और समझते हैं कि मतलब लेडीज का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो जितना ज्यादा हम इस चीज को समझेंगे कि इनफैक्ट उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है डिजास्टर्स के केस में, वो जो उनकी स्ट्रेंथ है उसका इस्तेमाल कैसे करना. तो फोकस जितना ज्यादा इस चीज पे रहेगा कि उनकी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कैसे करना, उतना ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये कम होना. सो एज आई टोल्ड यू इनिशियली ऑल्सो that we should focus more on looking at women more as an asset during disasters and less as liabilities. So their work needs to be appreciated. And the more we realize that the kind of work they can do when it comes to disasters can be very important, the less this discrimination would get. So, any questions? Yes. Thank you, ma'am. Friends, if you have any question, please ask. किसी को कुछ पूछना है, you can ask in Hindi also. No questions? Good afternoon, ma'am. हाँ जी. जी. Ma'am, I would just like to appreciate the fact that you're not keeping well. I can see that. And still you have taken this lecture in such a comprehensive manner. So I was just wanted to appreciate you and thank you for this. Thank you so much. Actually, it is the work which gives us energy. No? You're very right. Thank you so much. Anyone so else? much. Take care and get well soon. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yes. Thank you, ma'am. It's good.
थैंक यू मैडम मैम लेक्चर अच्छा था थैंक यू Thank you. I will share one article written by me on gender sensitive disaster risk reduction. वो आपको थोड़ा और हेल्प करेगा चीजों को समझने में। आइला जर्नल में पब्लिश हुआ था वो। यस यस Yes, madam, sure. Okay. यहाँ पे So रुकते हैं shall I, मैम? Yes, yes, ma'am. So thank you so shall much, I madam. top off the meeting? Yes, yes, ma'am. Thank you so much, madam, once again for engaging the session in such a critical situation also, and discussing the points related to disaster management and Thank you gender so much. Actually sensitivity. वो ये टॉपिक पे कोई दूसरा पकड़ना भी बहुत मुश्किल है एंड Yes, madam. आपका जब सुबह फोन आया, I was thinking that कि अभी मुझे टाइम पे सेम टॉपिक पे कौन मिलेगा? But it's okay, ma'am. आई It's okay. अंडरस्टैंड क्योंकि वो मुझे पता है कि मैं किस टाइप के सब्जेक्ट में डील करती हूँ Yes, ma'am. और अब Yes. तो मेरी सिचुएशन बहुत बेटर है कल से। जी सो जी. Okay, ma'am. रात को रेस्ट भी हो गया उस वजह से शायद ठीक है, बेटर है। Okay. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, Take madam. Thank you care, so ma'am. much for accommodating. Yes, thank you, ma'am. Thank you. Take care, ma'am. Thank you, all the participants. Yes. एक मिनट हाँ, अपन अटेंडेंस ले लेते हैं. मॅडम कधी कधी अनस्टेबल इंटरनेट राहतं पण आमच्या लोकांचं आम्ही असून सुद्धा अबसेंट लागले त्याच्यात. नाही सर, मी तुमचे नावं बघून घेते ना लिस्टमध्ये. मी अबसेंट मार्क नाही करत. तुमचं नाव असेल आणि आवाज नसेल येत तर मी प्रेझेंटही मार्क करते तशी. आम्हाला म्हणजे फोटो सुद्धा होता पण मला आवाजच येत नव्हता. ठीक आहे ना, काही हरकत नाही. त्याला आपण काही नेटवर्कला काही करू नाही शकत. इट्स ओके, काही होत नाही. ओके. येस, एक मिनिट हा. लेट मी स्टॉप रेकॉर्डिंग.